है ना? यस सर। ओके, तो लास्ट दिन हम लोगों ने क्या किया था याद है? याद है ना क्या क्या किया था? यस सर, सर वॉइस डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे। ओके, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? यस So last day we have discussed the some properties of the estimates beta naught beta 1, like unbiasedness, base linear unbiased estimators, etc., right? So today let's start with MAD, that is maximum likelihood estimator. Okay, so we have the regression line, that is yi, that is beta naught plus beta 1 xi plus epsilon I. Okay, where epsilon i's are normally distributed with 0 and sigma square. So we are talking about the homoscedastic distributions. Okay, so now what will be the distribution of yi? So if epsilon I is distributed as normal, then what will be the distribution of yi? क्या होगा yi का distribution? Guess करो. बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi सिग्मा स्क्वायर। बताओ, हाँ बोलो. बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi मीन हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर हाँ तो वैल्यू देखो, एज इट इज। ये तो वेरिएबल है ना, ये तो वेरिएबल है एप्सिलॉन आई. yi के अंदर ये जो है एप्सिलॉन आई इज द वेरिएबल and beta plus beta 1 is the constant. Okay, if we consider yi as a function of I, then that term, that beta naught plus beta 1 xi is a constant term, so that will be our mean, because the expected value of epsilon I equal to 0, so that is yi follows normal with mean equals to beta naught plus beta 1 x, and obviously since the constant term, variance will be sigma square, as same as the previous one. Okay, so now we have the distribution of yi, so we can easily find likelihood function. So I think you all guys know what is the remember the difference between a likelihood function and a probability function. Okay? There is a difference between probability function and the likelihood function. Can you tell me, anyone, the difference between these functions? What sir? What's the difference between likelihood function and a probability function? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आज भी ब्रेक हो रहा है? जी हेलो. यस सर। हम ये पूछ रहे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक्लीहुड फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दोनों के अंदर अंतर क्या है? लाइक्लीहुड फंक्शन में हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं पैरामीटर को, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एनीवन एल्स? सर likelihood function is the joint PDF or PMF, and probability distribution function is the only distribution function. सर probability function में probability density function और probability distribution function. देखो, जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, we have two types of probability function. One is probability density function, one is probability mass function. So don't worry about it, just talk about a probability function P. Okay, just talk about a probability function and a likelihood function. एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन में क्या सर क्या होता है? हाँ, लाइक्लीहुड फंक्शन में आपका पैरामीटर का वैल्यू चेंज होते होते मतलब चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी में पैरामीटर का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। मतलब थीटा का वैल्यू चेंज हो सकती है मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन में। अगर हम जॉइंट पीडीएफ लिखे ना तो उसमें चेंज होने हो सकती है। okay,
So basically the difference between a likelihood function and a probability function is that likelihood function is a function of parameter. So whenever you are writing a likelihood function, the fx, suppose fx is a likelihood function, okay, here x is a parameter, and if it is a probability function, x is the random variable. So whenever you are writing a likelihood function, suppose we are talking about this problem, we will be writing a function L Beta xi naught. yi beta naught beta 1 and sigma square. Okay, but if you are writing a probability function of yi, that will be f of yi, that is equals to a normal PDF, normal distribution PDF, that there will be a normal distribution PDF. Okay, so major difference between likelihood function and a probability function, the first conceptual difference, there will be more differences, like for example the sum of or integration of a probability function is equals to 1 but not equals to 1 in the case of likelihood function. Okay, so there are more differences, but the major difference is that the parameter thing. Okay, so fine, let's talk about the likelihood function of this problem. So what will be the likelihood function for this distribution? That will be multiplication of I equals to 1 to n and the PDF of normal distribution. Okay, so 1 by 2 pi, what is the sigma here? Sigma square. Okay, sigma square whole to the power half, and e to the power, so what we can write, minus 1 by 2 sigma square. Is that correct? ठीक है ना? So yi minus the mean. What is mean? Beta naught minus beta 1 xi whole square. Is that correct? बताओ. Yes, sir. ठीक है ना? Okay, fine. Now we have the likelihood function. Now to find the maximum likelihood estimator of beta naught, beta 1 and sigma square, what we have to do is we have to find the log likelihood function first of all. Okay, then we have to find the partial derivatives of the log likelihood function with respect to beta naught, beta 1 and sigma square. Then equating with 0, we get the MLE of beta naught, beta 1 and sigma square, right? That's the general procedure of finding a likelihood function. Sorry, MLE, right? क्या याद है ना, like MLE कैसे निकालते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so what will be the log likelihood function? ln. Sir, I have a one question. Yesterday, you calculate beta 1 and beta naught by method of least square. Okay. Okay. हाँ. Why I will again estimate apply maximum likelihood estimation? देखो एक कोई पैरामीटर का वैल्यू निकालने का बहुत सारा तरीका होता है ना. Yes, So sir. MLE भी ट्राई करते हैं, ठीक है. After finding MLE, we will check whether the results that are coming out using like LSE and MLE both are equivalent or not. Okay, so the Okay. thing is it is quite easy to calculate using least square. Okay, but MLE is quite complicated. For example, suppose here we are talking about the regression line and the error terms are normal distributed, right? Okay, these terms are normal distributed. Now suppose in some case assume that error term is distributed at exponential. Okay, then you can't proceed with least square. Okay, sir. Okay, there will be difficulties, you can do that, but there will be difficulties. least square भी यूज कर सकते हैं, बट उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करके चेंज कर कुछ चीजें, जो एरर टर्म है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. लेकिन बट द थिंग इज वी हैव डिफरेंट अप्रोचेस, राइट? LSE is approaches or approach Okay, sir. MLE. Okay, so
तो what is the log line xi yi beta naught beta 1 sigma square? जैसा कि याद है ना, जब suppose we have the distribution normal mu comma sigma square, okay, then we have found the unbiased estimator of mu, consistent estimator of mu, sufficient estimator of mu. याद है ना, एस्टिमेशन का जितना भी तरीका था, जितना भी प्रॉपर्टीज था फॉर अ गुड एस्टिमेटर, ओके, सब कुछ यूज किया था उधर, राइट? Yes, sir. तो इधर भी जितना देखो, देयर आर टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज द कंडीशंस. देयर आर फोर कंडीशंस, जैसे कि अनबायस्डनेस, सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी. ओके, these are the conditions, or you can say like when we have a estimator, we can apply estimator in those conditions whether the estimator is good or not. If a estimator satisfies all those conditions, then we can say that okay, fine, this estimator is a good estimator. Okay, but how we can find the estimator? So there are some techniques in which we can find the estimator. For example, MME. For example, MME. MME याद है ना, method of moment estimator. So these are techniques. So in which you can find the estimator, but you can't judge a estimator using MLE. MLE यूज करके तुम एस्टिमेटर को जांच नहीं कर सकते कि ये एस्टिमेटर कैसा है. To judge a estimator, you have to use the unbiasedness property, the consistency property. ये सब चीज तुमको यूज करना होगा, right? So we have the log likelihood function, that is ln L, that is equals to minus n by 2 ln 2 pi minus n by 2 ln sigma square minus 1 by 2 sigma square. This will be a sum sign, right? No. There will be a summation sign. Okay, summation of yi minus beta naught minus, okay, whole square. Is that correct? सही किया ना मैंने? देखो, चेक करो, सही किया है ना? नहीं तो बाद में क्या होगा, पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा. यस सर, सही है. हाँ, सही है ना? यस सर, वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रहा है ना? मतलब उतना सही से नहीं आ रहा जितना आना चाहिए. सही से नहीं आ रहा है? सबका ऐसा प्रॉब्लम है क्या? Yes, sir. ठीक है, अगर कोई जगह समझ में नहीं आए तो रिपीट करने का बोलना, ठीक है? करेंगे फिर से, ठीक है? रिपीट कर दीजिए. Okay, so now we are going to find the derivative of this function, log likelihood function. So del ln xi yi beta naught beta 1 sigma square by del beta naught. What will be the value of this? Minus 1 by sigma square summation yi minus beta naught minus beta 1 xi, right? सही है ये? So we are equating it with 0. Now we are getting summation yi, that is equals to n beta naught plus beta 1 summation xi. Is that correct? ठीक है ना ये? Similarly del बीटा नॉट कैप ln एंड बीटा 1 कैप हो जाएगा ना सर? बीटा नॉट क्या होगा बताओ? कैप हो जाएगा ना? नहीं, अभी छोड़ो ये, ठीक है? अभी ये छोड़ो, Okay. बाद में जब हम मिनिमा निकालेंगे तब कैप बेटा के उसको चेंज कर देंगे, ठीक है? जैसा कि पिछले दिन हम लोगों ने किया था. सेम ही है ना? जो भी है सेम है इधर अभी, क्योंकि अभी ये
ये अभी तक पैरामीटर ही है, ये जो है बीटा नॉट बीटा वन अभी तक इसका वैल्यू एस्टिमेट नहीं किया है हम लोगों ने। हाँ, इक्वेशन सॉल्व होने के बाद वो होगा बीटा नॉट बीटा वन सिग्मा स्क्वायर बाई डेल बीटा वन, that is equals to what will be the value of this, minus 1 by sigma square summation yi minus beta naught minus beta 1 xi into xi, that is equals to 0, implying it we get summation yi, that is xi yi, so we can write summation xi yi, that is equals to beta naught into summation xi plus we can write beta 1 summation xi square. Fine. ये ठीक है ना? Yes, sir. Okay. So now this is the same thing we have done in least square estimation, right? So equating 1 and 2, these are the two equations, we can get the same result. That is one is b naught. b naught is the, देखो बीटा नॉट, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं ये चीज, बीटा नॉट बीटा वन, ये जो टर्म, ये जो था इसका मिनिमा, जो मिनिमा था वो कहां पर था, बी नॉट कॉमा बी वन, ठीक है? तो इसीलिए we can write as b naught, that is equals to y bar minus b1 x bar, and b1 equals to sxy by sxx. Minima or maxima? We are maximizing the. Sorry, maxima. Right. Maxima. Okay. So देखो ये जो अभी तो हम लोगों ने जीरो से इक्वेट किया है, अभी ये जो वैल्यू है ये मिनिमा होगा, ये फिर मैक्सिमा होगा, ये आएगा सेकेंड डेरिवेटिव करके, मतलब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करके जो आएगा उधर से पता चलेगा। हाँ, तो फिर भी वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि एलएससी में जो हम किए थे उस टाइम जो हिर्शियन मैट्रिक्स H बना था वो था पॉजिटिव डेफिनाइट। अभी अगर जो मैट्रिक्स निकलेंगे वो होना चाहिए क्या, नेगेटिव डेफिनाइट, तभी वो ये जो रिजल्ट है ये मैक्सिमा होगा, राइट? Yes, sir. हाँ, तो अभी हम लोग करेंगे, देयर आर वन मोर पैरामीटर दैट इज सिग्मा स्क्वायर, सो वी विल बी derivating the log likelihood function beta naught beta 1 sigma square by the sigma square. So we have 2 sigma square, right? In that function we had 2 sigma square. Look, here we have a sigma square and here we have another sigma square. So if we take the derivative of the first term, what will happen? That is minus n, and log ln sigma square will be 1 by sigma square. So the term will be, that term will be minus n by 2 sigma square, right? And this term 2 sigma square is in the denominator. Okay, so if we try take a derivative of sigma square inverse, that term is called sigma square inverse. So if we take a derivative of sigma square inverse, that derivative will be minus sigma square to the power 2, right? slow चल रहा है। हाँ, सुनाई नहीं दिया, बताओ। सर वो लगता है नेटवर्क आपका स्लो है, लेटेंसी है, मतलब कि आप लिखने के बहुत देर बाद ये होता है, साउंड पहले आती है। ओके, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, हम कम करते हैं, एक बार ऑफ करते हैं। हाँ, देखो अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस सर। ओके फाइन। तो हम जो बोल रहे थे कि ये जो पहला टर्म था n/2 ln सिग्मा स्क्वायर, ये टर्म डेरिवेटिव हो गए बन रहा था माइनस n/2 स्क्वायर, एंड दूसरा जो टर्म है 1/2 सिग्मा स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हो के आ रहा है
-1/2 सिग्मा टू द पावर 4। अभी ठीक है ना? ये लेटेंसी तो नहीं आ रहा है ना अभी? नहीं लैग नहीं कर रहा है सर, ठीक है, ठीक, ओके फाइन। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन था उसका सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो पहला टर्म आएगा -n/2 सिग्मा स्क्वायर एंड दूसरा टर्म आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 सिग्मा टू द पावर 4 and the remaining term will be same, that is 1 to n yi minus beta naught minus beta 1 xi whole square. So if we equating with 0, we get, look, sigma square and there is sigma to the power 4, so sigma square cap, or you can write okay, sigma square cap, that is equals to 1/n summation yi minus beta naught minus beta 1 xi whole square। ठीक किया मैंने? बताओ। यस सर। Okay, so now tell me one thing, what is this? Hello, what is this value? That the term we have written there, the 1/n summation yi minus beta naught minus beta 1 xi. Now tell me, what is the value of beta naught minus beta 1 xi? yi cap. Right. यस सर। So now what we can write here, if we consider this square is our s bar square, यहाँ और सर S बीटा नॉट कैप एंड बीटा 1 कैप होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होगा। beta naught, सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होगा। okay fine कर fine, रहे हैं। देखो, no, look, beta naught cap is our b naught, I am denoting beta naught cap equals to b naught, ठीक है? Remember one thing, in regression line yi equals to beta naught plus beta 1 x plus epsilon I. Here beta naught and beta 1 is our parameter. Okay, now suppose we have a data, and using the data, when we get the regression line, we can write, suppose yi equals to 0.5 plus 0.3 xi plus epsilon I छोड़ दो, ठीक है? ये जो लाइन हम लोगों को मिला है, इधर b1 is our 0.5 and b0 is our 0.5 and b1 is our 0.3, correct? यस सर। So whenever you are talking about beta naught cap का मतलब क्या है? What is the meaning of beta naught cap? Estimated value of beta naught. Estimated value. This is our b naught. That's why Yes, when sir. we are taking expectation of b naught, that is beta naught. कल किया था ना, ये प्रूफ किया था ना, Yes, sir. Yes, expectation sir. of b naught equals to beta naught. तो ये जो b naught है, this is our beta naught hat. तो अगर तुम कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो ना, तो उसमें ऐसा मिल सकता है कि you were Yes, sir. getting, उसमें नहीं Yeah. प्रॉब्लम है सर। आपने जो सिग्मा स्क्वायर हेट लिखा है वहाँ पे बीटा नॉट ही लिखा है, और जो पैरामीटर वहाँ पे प्रॉब्लम हो, तो मैं समझ रहा हूँ। सिग्मा स्क्वायर, ओके फाइन, जो आपने ये सिग्मा चेंज स्क्वायर कर हेट देंगे। लिखा है। हाँ, Yes, अभी sir. हम आ रहे थे, यही पर आ रहे थे Okay, कि okay. बीटा नॉट की जगह बी नॉट लिख लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिग्मा हेट स्क्वायर में चले गए हैं। सिग्मा स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर, राइट? तो वही हम पूछ रहे थे सबको कि अभी बताओ इसको क्या करना है, समझ गए? ये जो टर्म है, Yes, sir. इसी को अभी क्या करना है, इसको चेंज करना है ना, Yes, sir. राइट? तो वही पूछ रहे थे कि देखो, अभी हमारे पास जो
सिग्मा स्क्वायर है, ये जो सिग्मा स्क्वायर है, तो वी हैव अ फंक्शन with 3 parameter beta naught, beta 1 and sigma square, and we get a negative definite Bayesian matrix. So मैं इस ये अभी थोड़ा इग्नोर कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हाँ, वो मैट्रिक्स फाइंड करने में। जो अभी हम लोगों को क्या मिल गया है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मिल गया है। अभी सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे तो एक 3x3 मैट्रिक्स बनेगा, उसको निकल के वो नेगेटिव डेफिनेट है या पॉजिटिव डेफिनेट है, बहुत टाइम लगेगा। तुम लोग कर सकते हो लेकिन उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। But the thing is that Bayesian matrix is a negative definite matrix, and it is a negative definite matrix at b naught, comma b1, comma s square at this point. Okay, so we get a maximum of this value, that is b naught b1 s square. Okay, सर ये एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है? s square का वैल्यू, यस सर, s square का वैल्यू हो रहा है 1/n summation yi minus b naught minus b1 xi square, right? ये आ रहा है ना, तुम ये कैप हटाओ, मुझे तुम समझ में नहीं आएगा। देखो अभी मैंने क्या किया, ये जो फंक्शन है, ये इसका जो वैल्यू है इक्वल टू 0 करके मैंने इसको निकाला है, ठीक है। देखो टेक्निकली इफ यू आर राइटिंग दैट सिग्मा हैट स्क्वायर, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि अभी तक मैंने सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाला नहीं है, यस सर, राइट। जब तक तुम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालोगे, तुमको कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है? ऐसा कुछ नहीं है ना। यस, so technically you should not write that, okay, but बहुत सारी जगह में लिख लेता है लोग, है ना। देखो अभी हम लोग का टारगेट है गेट, तो गेट के लिए ये सब इतना टेक्निकल चीजों में घुसना नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा चीज है कि हम लोगों को क्या करना है, डेरिवेटिव के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जीरो को इक्वेट करना है, उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा वैल्यू होगा इफ एंड ओनली इफ the Bayesian matrix is negative definite, ठीक है। तो यूजुअली ये नेगेटिव डेफिनेट बन जाता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है एस स्क्वायर, अभी इसमें एक कैच है। कैच क्या है, पहले जो हमने निकाले थे ना बी नॉट एंड बी वन, याद करो जो हमने एलएससी में निकाले थे, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन में निकाले थे बी नॉट एंड बी वन, ये सेम है क्या डिफरेंट कुछ है? सेम ही है ना, सेम है। एंड एलएससी में सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू क्या था, मतलब व्हाट वाज एमएस रेसिडुअल था, हाँ, व्हाट वाज एस स्क्वायर एलएससी, दैट वाज 1/n-2 summation yi minus y bar square. नो सर, y hat square, Y hat square, right? yes, Y hat means our y hat means our क्या था, beta naught plus beta 1 plus beta 1 x hatted value, हाँ, estimated value of beta naught and beta 1, right? yes, So the thing is there is a difference between s square ml 1/n summation yi minus y hat square and s square lsc. The only difference, तुम किसी ने पूछ रहा था मुझे कि मैंने जब लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन निकाला था, we have already derived the least square method to find or to estimate the parameters in the regression equation. Now why we are talking about ml? Okay, so now we have a different value of sigma square, right? So can you tell me which one is unbiased? सर एलएस वाला अनबायस्ड होगा, first one ईमेल ऐसे। वाला अनबायस्ड नहीं होगा। ml वाला लास्ट दिन तो किया था ना, ये वाला तो अनबायस्ड था, कल Yes, किया sir. था ना ये,
प्रूफ था ना, ये प्रूफ था ना, हुआ था तो ये यस सर, यस सर। याद है ना सबको? एक बार फिर से बताओ, नहीं तो एक बार फिर से कर देते हैं। सबको याद है ना ये अनबायस था? लेकिन अभी देखो ये जो टर्म है ये अनबायस नहीं है, क्योंकि आगे जो है ये 1/n लगा हुआ है, 1/n-2 नहीं है ना। So Yes, we sir. can write, so what we can write is s square ml that is equals to n/n-2 होगा कि n-2/n होगा? n-2/n होगा ना, n-2/2n s square LSE. This is a very important property in between LSE and ml. Okay, ये अच्छे से याद रखना ये वाला प्रॉपर्टी। ठीक लिखा है मैंने, देखो, इज दैट ट्रू, राइट? Yes, sir. True. सर सर प्रीवियस पेज। हाँ बोलो, देखो। ओके सर, डन। Okay, fine. Now tell me, when we can say that these both are same, s square ml and s square LSE are same? Is there any case? कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों सेम हो गया? I mean, and Sir, जब बहुत large value of होगी, n. and large value, so statistically what can we say? That we can say Asymptotically right, correct. unbiased. Yes. Okay, fine. So s square ml is a biased estimate, but it is asymptotically unbiased, right? So if we take a sufficiently large number of samples, then n-2 that is almost equals to n. Okay, so in that case there will be unbiasedness property. Okay, fine. So suppose now we have a change. What is the change? Suppose we have epsilon I follows exponential lambda. Okay, so if you have that part, can you derive? Anyone derive कर सकते हो इसको? Yes. क्या चेंज होगा इसमें? पहले लाइन से बताओ, कोई मुझे पहला देखो, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं चीज कि सपोज वी हैव द सेम रिग्रेशन लाइन yi equals to beta naught plus beta 1 xi plus epsilon I, but now the epsilon I IID follows exponential lambda. Okay, then what will be the change in our formulation, the next everything? So what will be the change? बताओ पहला लाइन से, what will be the change in here? सर डिस्ट्रीब्यूशन जो है y नैट का जो है, सॉरी yi का एक्सपोनेंशियल yi क्या फॉलो करेगा बताओ? तो लैम्डा हो जाएगा, ये बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi तो गिवन है। हाँ, फिर प्लस लैम्डा भी आ जाएगा। तो what will be the parameter of the distribution? बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस लैम्डा। So what is beta naught and beta 1 xi here? सर वो बताओ। YI फॉलो करेगा बीटा नॉट प्लस बीटा 1 XI प्लस 1/λ, और वेरिएंस होगा 1/λ²। नो yi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा?
बीटा नॉट प्लस बीटा वन प्लस बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब ये तो गिवन होगा ना। मतलब हम लोग वाई आई गिवन एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं ना। नो, देखो here we have epsilon I follows exponential lambda. Now suppose yi equals to epsilon I plus c. So what will be the distribution of yi? शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। Right. हम्म, है ना? yes क्या होगा sir। बताओ फिर? एक्सपोनेंशियल क्या होगा? एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस मतलब वाई ओके आई फाइन माइनस फाइन, सी। लिखो, मुझे लिखने दो। एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है? लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। ओके, so now what will be, suppose this y, so y equals to x plus c, so what will be f of y? ये x greater than 0 है। अभी what will be f of y? लेमडा lambda लेमडा e की पावर e to the power लेमडा लेमडा minus lambda, बताओ, एक्स माइनस x सॉरी minus वाई माइनस सी y minus c, and y एंड वाई will इज be greater ग्रेटर than देन c. सी। तो यही तो है सिंपल चीज। यस Here सर। we have epsilon I follows exponential lambda at yi equals to beta naught plus beta 1 xi plus epsilon I. Then yi follows exponential lambda comma c. मतलब यस c का मतलब क्या है? c का मतलब है बीटा बीटा नॉट नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई। प्लस बीटा 1 xi। यस समझ में आया सबको? तो अभी जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा, व्हाट विल बी द लाइक्लीहुड फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द लाइक्लीहुड फंक्शन। लाइक्लीहुड फंक्शन विल बी L of xi कॉमा yi कॉमा और क्या है? बीटा नॉट है, बीटा 1 है, लैम्डा है, राइट? लेमडा यस So that is equals to multiplication of I equals to 1 to n lambda e to the power minus lambda yi minus beta naught minus b1 xi। यस तो अभी जो भी प्रोसीजर है, अभी तुम इसको ln l ले लो। ln l का मतलब क्या हो जाएगा? पहला जो टर्म है क्या होगा? एन लॉग लेमडा n ln lambda माइनस लैम्डा माइनस इंटू लेमडा टाइम्स समेशन ओवर समेशन yi माइनस बीटा नॉट बीटा नॉट। माइनस बीटा 1 xi। यस ठीक है, सो तुम अब नेक्स्ट जो पार्ट है कर सकते हो। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आया? किसी का अगर समझ में नहीं आया है तो बताओ। तो ये जो यहाँ पार्ट यहाँ से भी सर बीटा नॉट और बीटा वन तो सेम ही आ जाएगा। बीटा नॉट एंड बीटा वन सेम नहीं आएगा, नहीं आएगा सेम। कहाँ नहीं सेम आ रहा है? थोड़ी ना स्क्वायर है इसमें, अच्छा हाँ सर स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर तो नहीं ओके है ना, ओके तो थोड़ा चेंज जी होगा ये। यस सर यस सर। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर किसी को ये जो अभी मैंने किया है ये समझ में नहीं आया तो बताओ। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गेट में एक बार आया था ऐसा प्रॉब्लम, आई थिंक होगा जो पीडीएफ है उसमें भी होगा कि सेम प्रॉब्लम है। ये एक्सपोनेंशियल ना होके इधर था एप्सिलॉन आई फॉलोस लैपलास डिस्ट्रीब्यूशन। लैपलास और जो हम लोग बोलते हैं डबल एक्सपोनेंशियल यस सर यस डिस्ट्रीब्यूशन सर। था। ठीक है, यस सर क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है। यस ऐसा क्वेश्चन आया था ना, तो सेम ही यस होगा। सर। तो डबल एक्सपोनेंशियल जब होगा लैपलास होगा, ये पार्ट मॉड आ जाए, मॉड में आ जाएगा। और क्या होगा? वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर स्टैटिस्टिक, वी हैव टू यूज द ऑर्डर स्टैटिस्टिक इन दैट केस, राइट? ऑर्डर स्टैटिस्टिक सबको याद है? यस सर।
बाकी लोग Yes, sir. बताओ। हाँ देखो, कम्युनिकेशन बनना चाहिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार हम ये बोल रहे हैं कि पूछ लो मुझे एक बार, ठीक है। जितना बार हो सके रिपीट कर देंगे, लेकिन बात ऐसा है कि ये जो टॉपिक्स है, ये जो तुम देख रहे हो जी, रिग्रेशन एनालिसिस में सिर्फ वो रिग्रेशन लाइन बनाना नहीं होता है, उसमें इन्फरेंस भी आता है। ये जो इन्फरेंस का टॉपिक है, रिसेंट जो गेट एग्जाम्स तुम अगर पेपर घटोगे तुम दिख पाओगे, इन्फरेंस से ज्यादा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। पहला टाइम था द प्रीवियस लाइक 1920 में ऐसा था कि सिंपल चीज चीज आता था, तो अभी क्या हो गया, इन्फरेंस में शिफ्ट हो गया है प्रॉब्लम धीरे धीरे करके। तो ये पार्ट पे तुम लोग आसानी से 5-6 मार्क्स रहता है हर एक टाइम पे, कभी 5 मार्क्स कभी 3 मार्क्स रहते हैं, ये आसानी से आ जाएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा है, कम टाइम में हो जाता है, कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। तो ये जो चीज सर है ये इन केस ऑफ डबल एक्सपोनेंशियल थोड़ा कर दीजिए सर। डबल एक्सप्रेशन में क्या क्या चेंज होगा बताओ इसमें। यही सब मॉड में हो जाएगा। मॉड में होगा नहीं ये। यस सर, बट वहाँ ओके पे जो लेमडा है वहाँ 1/2 लेमडा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, रुको ये भी चेंज होगा। यस सर, तो वो तो ठीक है। सपोज जो इसका फिर एमएलए कैसे फाइंड आउट। हाँ देखो, इधर जो बीटा नॉट एंड B1 होगा ना, बीटा नॉट बीटा 1, ये हम लोगों को यूज करना पड़ेगा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यूज करके। मतलब देखना पड़ेगा बीटा नॉट एंड बीटा 1 का कौन सा कॉम्बिनेशन से ये जो फंक्शन ये मैक्सिमाइज हो रहा है। रुको करते हैं, ठीक है, वेट। तो व्हाट इज द पीडीएफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, एल लिख लेते हैं, एल इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n 1/2 लैम्डा, लैम्डा होगा ना। क्या था प्रॉब्लम, याद है तुमको प्रॉब्लम में क्या था, मतलब पैरामीटर क्या दिया था, पीडीएफ दिया था ना कुछ उसमें। रुको मेरे पास है क्वेश्चन, निकाल लेते हैं एक बार। कौन सा ईयर में आया था ये, 23 में ना। यस सर, 23 में सर आया ने था। पीडीएफ शेयर किया है, शेयर कर दीजिए। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो। वो सर ने पीडीएफ शेयर किया है ग्रुप में। ग्रुप में शेयर है ना ये। हाँ पेज नंबर बताओ कौन सा पेज में था, याद है प्रॉब्लम कौन सा पेज में था। पेज हाँ नंबर मुझे मिल गया है, ये तो है ना। क्वेश्चन नंबर 3 सर ने जो पीडीएफ भेजा है ग्रुप में, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 देखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसा था, yk there is a regression of yk that is equals to a0 plus a1 log a plus epsilon k, where ei distribution function fx equals to 1/2 e to the power minus mod x। सर योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके ओके। right? ये वाला टर्म था ना। यस सर, ओके yk equals to alpha naught alpha 1 log ek so 7k। if that is true, then what will be the distribution of yk? yk का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, f of बताओ yk इक्वल्स टू 1/2 e के पावर e पावर माइनस माइनस x माइनस a naught a1 माइनस a1 log ek, log right? ek। yes sir। Okay fine। So if we take the likelihood function l equals to 1/2 to the power n multiplication of, ठीक किया ना मैंने,
I equals to 1 to n e to the power minus x minus a naught minus a1 log ek, राइट। तो अभी अभी क्या होगा कि इस पर ln लेना है, ln l n ln, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इसको छोड़ो, कोई काम का नहीं है। प्लस प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस समेशन समेशन ओवर mod of xi xi minus a naught minus a1 log ek I equals to 1 to n. Okay, fine. Yes, sir. So now think about it. Think about this value. Okay. So ln L is maximum if, देखो कैसे अप्रोच करना है इस, अगर ऐसा टाइप होगा ना, तो अगर तुम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर पा रहे हो तो इसको कैसे अप्रोच करना है। ln L is maximum if that summation term is minimum, because there is a negative sign over there. So we can easily write that if summation mod of xi minus a naught minus a1 log ek is minimum. ये सब में समझ में आ गया सबको? हाँ, यस सर। सर डायरेक्ट डेरिवेटिव क्यों नहीं कर सकते? मॉड है ना, कर सकते हो डेरिवेटिव। बताओ क्या होगा डेरिवेटिव करेंगे तो? What is the derivative of ddx of sorry not ddx da naught of sum छोड़ो, mod of xi minus a naught minus a1 log k, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ सर मोड ऑफ x बाय fx और फिर fx को डिफरेंशिएट कर देंगे। कर सकते हो, बट द थिंग इज इसमें क्या होगा, देखो जैसा कि हम लोग यूज करते हैं ना, ddx और mod x इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है ना, 1 भी हो सकता है माइनस 1 भी हो सकते हैं। मोड x बाय x होता है या x बाय मोड x? x बाय सर हाँ सेम ही है, ठीक है। मीडियन के बहुत मिनिमम होगा ना ये? हाँ ये मीडियन के मिनिमम होगा, लेकिन बात ऐसा है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि क्यों हम ये डेरिवेट नहीं कर सकते हैं, मतलब द बेसिक थिंग डेरिवेटिव इज कैसे कर पाएंगे कि वो मॉडुलस जो है तो डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है ना? लॉग, ये तो लॉग x के अंदर है ना। 0 x at 0 के छोड़ के हर जगह डिफरेंशिएबल। इसको ब्रेक करना पड़ेगा, माइनस ए नॉट माइनस ए वन लॉग ई के ग्रेटर देन और लेस देन लेके तब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। सर जैसे fx होता है ना मोड में, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं x बाय मोड ऑफ fx, फिर वो fx को डिफरेंशिएट कर देते हैं f dash x when x is not equal to fx is not equal to 0। नहीं, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं, मतलब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू a नॉट a1 एंड k के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएबल है ही नहीं ये फंक्शन। ये जो फंक्शन है k के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट तुम नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि देखो mod x by x होगा ना, तुम जो बोल रहे हो ना, अकॉर्डिंग द, तो ये तो फॉर्मूला ही है, mod x by x है डिफरेंशिएट ऑफ mod x ना, तो इस फॉर्मूला के हिसाब में तुम इसको का बैठाओगे ना इधर, ये जो वैल्यू है आइदर -1 अगर +1 आ भी गया तो उसका अल्टीमेट यूजेज कहाँ है, मतलब तुम बताओ कि मुझे तो -1 +1 तो नहीं निकलना है ना, मुझे देखना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है,
तो यूजुअली हम लोग ये डिफरेंशिएशन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक फंक्शन अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 है तो उस फंक्शन से हम मैक्सिमम और मिनिमम निकल सकते हैं। तो क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएट करके तुम अगर प्लस माइनस 1 निकल रहे हो उसका मतलब उससे तो तुम निकल नहीं सकते ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव यूनिफॉर्म फंक्शन, यूनिफॉर्म 0 1 0 थीटा, ओके, थीटा का इमेज निकालना है, तो इसका जो फंक्शन, इसका लाइक्लीहुड फंक्शन जो है वो क्या है, 1 by थीटा टू द पावर n। इसका जो लाइक्लीहुड फंक्शन का जो लॉग वैल्यूएशन क्या है, माइनस एन एल एन थीटा, यस सर। राइट। तो अभी ये तो तुम्हारा एल एन एल थीटा है ना, तो अभी इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे ना, क्या आएगा, माइनस एन बाई थीटा। तो माइनस एन बाई थीटा इक्वल टू 0 करके तुम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। इसीलिए हम लोग उधर ये जो जगह था यूनिफॉर्म 0 थीटा, हम लोग क्या करते थे, ऑर्डर स्टैटिस्टिक लेते थे, चेक करते थे कि ये फंक्शन, ये जो वैल्यू है लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, ये फंक्शन मैक्सिमम कहां पर हो रहा है। याद है ना ये चीज। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएट करने के बाद 0 करके तुमको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो अभी तुम ये अप्रोच यूज कर रहे थे कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक यूज करो, ऑर्डर स्टैटिस्टिक यूज करके तुम वो फंक्शन के वैल्यू निकालो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो, था ना ये। यस सर। तो सर हम इसमें तो ना फंक्शन वो सिर्फ मोड एक्स बाय एक्स नहीं कर रहे हैं, फिर फंक्शन भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, अंदर का जो फंक्शन है टोटल, तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद तो फिर पर्टिकुलर वैल्यूज देगा ही। देखो फॉर एग्जांपल इफ यू डिफरेंशिएट इट विद ए नॉट, ओके, ए नॉट के ऊपर डिफरेंशिएट करो, तो तुमको क्या ऊपर में क्या आएगा, इसका मॉड वर्जन आएगा, मतलब जो मॉड्यूलस वर्जन, नीचे क्या आएगा, इसका सिंपल वर्जन, और ए और नॉट क्या पर आएगा उसके साथ मल्टीपल में आएगा -1। -1। तो फायदा क्या है, तुम इसको इक्वेट 0 से इक्वेट तो नहीं कर सकते हो ना। नहीं यहाँ पे नहीं होगा, दूसरा अगर कोई ए नॉट के साथ कुछ और फंक्शन रहता हाँ तब हो तो जाता। कर सकते थे। तो यूजुअली हम लोग कभी कभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि मैंने बताया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हो गया, और भी बहुत सारे जैसा कि एक्सपोनेंशियल भी हम करते हैं, कहाँ पर करते हैं पता है, जब स्केल पैरामीटर होता है। जैसा कि अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारे पास e टू द पावर -x - a, अभी तुमको a का इमेज निकालना है, सब अच्छे से सुन लो, ठीक है, ये वाला चीज। सपोज यू हैव अ exponential distribution with scale parameter, the scale parameter is a, then when you are trying to find the MLE you are taking the order statistic, because इसका जो डिफरेंशिएशन है ये तुम नहीं आ रहा था, 0 से इक्वेट नहीं हो रहा था, है ना। ये एक्चुअली रीजन है ऑर्डर स्टैटिस्टिक यूज करने का। बट द थिंग इज ये अभी अगर तुम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो तो ये इजी हो गया है बहुत ना। तो डाउट सॉल्व हुआ ना, क्या मतलब क्यों डिफरेंशिएट करके नहीं निकल रहे हम लोग। यस सर। तो Yes, इसको sir. मैक्स मिनिमम निकलना है, ठीक है। तो बताओ ये कहां पर मिनिमम होगा, ये वैल्यू कहां पर मिनिमम होगा। 0 से इक्वेट कर देंगे। अरे समझ लो ना, सपोज ये हमारा ए है, ठीक है, अभी x1 x2 xn is our order statistic, I equals to 1 to n, ठीक है। तो अभी क्या है, x1 माइनस c प्लस xn माइनस c, सॉरी प्लस नहीं करो, मतलब x1 माइनस c सर ये फंक्शन मीडियन पे मिनिमाइज होगा ना। मीडियन पे होगा, वही हम निकलने का ट्राई कर रहे हैं, x1 माइनस सी। और देखो जितना भी फंक्शन है इसके अंदर ना, x1 माइनस सी, x2 माइनस सी, जितना भी फंक्शंस है इसका अगर सम हम लेंगे, मतलब देखो सम ही तो लेना है अल्टीमेटली ना। तो ये जो ए नॉट है, ए नॉट कहां पर मिनिमाइज हो रहा है, हाँ, ए नॉट कहां पर मिनिमाइज हो रहा है।
समझ में नहीं आ रहा है? देखो फिर से देखो अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये फंक्शन है, इसको हम लोगों को मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम लोग चेंज कर सकते हैं ए नॉट, ए वन और के, एक एक करके चेंज करेंगे, एक एक करके, ठीक है। ए नॉट करके चेंज करें जब ए वन एंड के फिक्स रहेगा। when a1 and k are fixed we change only a naught. when a naught and k are fixed we change only a1. when k is fixed we change only a naught a1. ठीक है? ठीक नहीं है क्या? यस सर, ठीक। बताओ क्या आइडिया क्या है इधर? कैसे ये एक फंक्शन को कैसे मिनिमम, यह था ना जब तुम लोगों ने क्या किया, जब मीडियन यूज करके वो निकाला था, क्या बोलते उसको, एक था ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन था एक्सपोनेंशियल, नो यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा। इसका जब इमेली निकाले थे, याद है कैसे निकाला था ये इमेली? यस सर। कैसे था ये इमेली? सर इसका लाइक्लीहुड फंक्शन 1/2 थीटा पावर n हो जाएगा, फिर x1 x2 xn ऑर्डर स्टडीज माइनस थीटा से xn थीटा के बीच में रहेगा। अब इसको थीटा वन थीटा टू कर लो, दो पैरामीटर हो गया। ऐसा ही है इधर, ए नॉट ए वन ऐसा ही है। समझ रहे हो? बेसिकली सर यहाँ भी x साइज ग्रेटर देन होगा ना a नॉट a1। नहीं तो x नहीं सर, ये तो डबल x में तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा पूरा में। कितना होगा बताओ फिर? हाँ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मेरे को पता है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यूज करो ना, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x1 x2 xk xn ये यूज करो इसको। ये क्या है? ये जो फंक्शन है ए नॉट के रिस्पेक्ट में क्या है? फंक्शन लीनियर है ना ये फंक्शन। यस सर। समझ में नहीं है? देखो अच्छे से समझ लो, ये x1 माइनस, सपोज इसको c पकड़ लो, ठीक है। c मतलब c इज अ फंक्शन ऑफ ए नॉट, एफ सी एफ ए नॉट पकड़ लो, x1 माइनस एफ ए नॉट, एकदम मैथमेटिकल टर्म से ये लिख सकते हो तुम, प्लस x2 माइनस एफ ए नॉट, ऐसे करके xn माइनस एफ ए नॉट। ये फंक्शन मिनिमाइज कब होगा? जब इसका जो मीडियन टर्म है वो एक, सपोज वो है XR इक्वल्स टू एफ ए नॉट होगा। सर एफ ए नॉट कोमा ए वन होगा। हाँ बताओ। सर एफ ए नॉट कोमा ए वन होगा। हाँ अभी मैं क्या कर लूँ ना, पहला A1 एंड K को फिक्स कर रहे हैं हम, ठीक है। कल लिख सकते, इसके जगह भी तुम लिख सकते हो, लेकिन मुझे क्या निकलना, ए नॉट का एमिली निकलना है मुझे। अभी A1 एमिली नहीं निकलना है। सपोज A1 कॉमा K आर फिक्स्ड, ठीक है। तो इसको फिक्स पकड़ के हम लोग ए नॉट का एमिली निकल लेंगे। ओके फाइन। तो इसका ए नॉट कब इधर कब मिनिमम होगा? जब ए नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, xn माइनस a1 log ek होगा। xn नहीं, xr सॉरी, xn नहीं, xr, where xr is the median of x1 to xn। समझ गए?
Okay. The same thing happens for A1. A1 that will be equals to xr minus A naught divided by log ek. Yes. क्यों ऐसा हो रहा है? सेम थिंग सब. अभी यू कैन चेंज द फंक्शन टू A1 में चेंज कर लो फंक्शन को. देन यू एज्यूम दैट A नॉट एंड K आर फिक्स्ड. ठीक है? समझ गए? Yes, sir. तो इधर A नॉट कॉमा A1 बोथ एग्जिस्ट करेगा एंड यूनिक भी होगा, दोनों ही. है ना? देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया ये समझ में आया है कि नहीं? ये सिंपल बातों में बताऊं. इसमें कहा तुमको डाउट लग रहा है कि नहीं ये सर नहीं होगा, ये क्यों ऐसा हो रहा है ये बताओ पहले. ये जो मैंने मिनिमम करने का ट्राई किया है ना एक फंक्शन को, उसके ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पकड़ के, इसमें लोगों का डाउट कहाँ पर है बताओ. क्योंकि ऐसा फंक्शन बहुत आएगा. ठीक है? ये अभी डबल लैप्लास फंक्शन यूज किया, डबल एक्सपोनेंशियल यूज किया. बाद में कोई भी टाइम पे एग्जाम में आ गया कि कोई ऐसा फंक्शन दे दिया जैसा कि शिफ्टेड नहीं ट्रंकेटेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सर इसमें A1 इक्वल टू क्या लिखे हैं? बताओ कहाँ पर? A1 इक्वल टू क्या लिखे हैं लास्ट में? xr माइनस A नॉट बाई log k. क्यों? क्योंकि जब मीडियन एट द पॉइंट ऑफ मीडियन xi माइनस A नॉट, मीडियन का पॉइंट को हम xr बोल लेते हैं, माइनस A1 log e बेस k, that value will be 0 मीडियन पे. राइट? यस सर. है ना? तो उसी को सॉल्व करो. उसी को सॉल्व करके आ जाएगा. अभी A नॉट के जगह तुम A नॉट हैट यूज कर लो. इसको डायरेक्टली मत यूज करो, जस्ट A नॉट हैट के यूज कर लो. है ना? सर नहीं यूज इसमें नहीं कौन कर सा सकते. ऑप्शन होगा फिर? इसमें देखो ये अल्टीमेटली क्या आ रहा है, A नॉट A1 दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड यूनिक हो रहा है. इसका दो वैल्यू नहीं हो सकता है ना. यस सर. तो अभी इसमें कौन सा ऑप्शन में ऐसा है? यहाँ बोल रहा द MLE ऑफ अल्फा नॉट डज नॉट एग्जिस्ट. MLE ऑफ अल्फा वन डज नॉट MLE एग्जिस्ट. ऑफ A नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो ऑप्शन में नहीं है, नहीं होगा, नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है. सेकेंड Yes, ऑप्शन sir. भी एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये भी करेक्ट नहीं है. थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? लीस्ट एस्टिमेट ऑफ A नॉट एग्जिस्ट एंड इज यूनिक, ये तो करेक्ट है. थर्ड और फोर्थ, अच्छा फोर्थ पे लिखा है इट इज नॉट यूनिक लिखा है, ये भी तो गलत है. फोर्थ भी गलत. सी ऑप्शन सी होगा इसमें, क्योंकि The least फोर्थ square estimator of alpha not exist and unique. हाँ बट इज नॉट यूनिक लिखा है. अल्फा 1 की जगह पे नॉट यूनिक लिखा है, तो नॉट यूनिक तो नहीं होने वाला है ना, यूनिक हो रहा है ये. यूनिक कैसे चेक कर रहे हैं? देखो अगर यूनिक नहीं होगा ना तो तुमको थोड़ी ना एक वैल्यू मिलेगा. मुझे तो यूनिक अगर नहीं होता तो इधर प्लस माइनस कोई वैल्यू आता. ठीक है? LSE के केस में तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत ही नहीं रहती है. यहाँ तो नॉर्मली बस आप साइलेंट के जो है एरर को मिनिमाइज करेंगे. एलएससी वहां के से जो केस वैल्यू में निकले. नहीं मतलब एलएससी के केस में क्या किसका जरूरत नहीं होता? डिस्ट्रीब्यूशन का. यस सर. नो एलएससी में तो एजम्पशन यही है कि एरर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूशन वही पर फिक्स कर दिया है उन्होंने. एलएससी में हाँ फिक्स कर दिया हाँ है, वो तो assumption ठीक है फिक्स सर. कर दिया मतलब LSE में मतलब फाइंड आउट करते समय कोई डिस्ट्रीब्यूशन की नीड नहीं होती. वो तो एजम्पशन में ठीक है. हाँ. तो अभी इधर एजम्पशन वायलेट हो रहा है ना, इसीलिए तो एमएलई डाला है इधर. LSE में सर IID होता है ना, नॉर्मल विद मीन 0. आईआईडी नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर होता है. हाँ
तो अभी इस प्रॉब्लम में तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये यहाँ तो डबल हाईलाइट हो रहा है। तो इसमें तुम एलएसी यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि लीस्ट स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन तभी यूज होता है अगर एरर टर्म्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट यहाँ ऑप्शन सी डी में दिया है एलएससी, डी भी दिया है क्या? सी एंड डी ऑप्शन में एलएससी की बात किया है ना। सी और डी में तो एलएसी की बात किया है ना। अच्छा LSC से भी चेक कर रहा ओके हूँ। फाइन। एलएससी के केस में तो हमें नहीं लगता कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन की नीड होती है। ओके फाइन, तो अगर हम लोग एलएसी जब एलएससी मैंने फाइंड आउट करते हो तो ठीक ठीक मेथड ठीक ठीक, तो ये जो कर लिया ना, ए बी चेक कर लिया, तो ए भी गलत है, ए भी गलत है, ठीक है, ये हो गया। अभी एलएसी क्या करना पड़ेगा पता है, इसको ना एप्सिलॉन आई को तुमको लेना पड़ेगा, नॉर्मल में लेके जाना पड़ेगा। नॉर्मल में क्यों सर? बस सिंपली ऐसे कर देंगे ना, वाई के माइनस अल्फा नॉट माइनस अल्फा वन लॉग वाई के के का होल स्क्वायर। अब ये बस कर डिफरेंशिएट देंगे, करेंगे अल्फा नॉट और अल्फा वन के रिस्पेक्ट में, और यहाँ दोनों की वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ पे वाई के माइनस अल्फा डी नॉट, ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो जा रहा है कि यहाँ यूनिक बोल रहा है कि नहीं होगा, जबकि यूनिक आएगा। यूनिक आना चाहिए ना, देखो करते यूनिक हैं। आएगा ना। ei square equal to this, तो if we derivative with respect to समेशन ओवर, यस। बस हाँ यहाँ से तो अल्फा नॉट अल्फा वन यूनिक ही आएगा। ये तो यूनिक आ रहा है क्योंकि एक ही तो है। यस सर। और we अल्फा वन के टाइम पे चेक करके देखते हैं, ठीक है। ये है एस स्क्वायर डी एस यहाँ स्क्वायर बस बाई एक्स आई की जगह बस log e के हो जाएगा, बस जो हम लोग करते थे। हाँ सेम ही बाकी आएगा, तो सेम माइनस टू आएगा। समेशन वाई के माइनस अल्फा नॉट माइनस अल्फा वन log e base k into log e k, that is equals to 0. So we get summation yk log e ek minus alpha naught समेशन ओवर log e के summation log ek minus alpha 1 log e के का होल स्क्वायर होल स्क्वायर समेशन ओवर log ek का होल स्क्वायर हो गया ना। तो अभी इस तरह से हम अल्फा 1 निकालेंगे, ठीक है। हाँ, एक ऐसे अल्फा नॉट के रिस्पेक्ट में होगा। अब जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी ये तो यूनिक ही आएगा, यूनिक ही आएगा, है ना। तो अल्फा 1 इज आल्सो यूनिक, नॉट भी यूनिक है, तो इक्वेशन टू वेरिएबल देन करेक्ट है, डी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी इनकरेक्ट है। हाँ तो ये सी करेक्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा। एमएल में भी सेम है, एमएल में भी दोनों यूनिक ही है, यस सर। राइट। एमएल और एलएसी दोनों में यूनिक ही है। इसमें ये प्रॉब्लम में तुम लोग एक काम कर लेना, इसमें ऐड कर लेना एक चीज, मैं तुमको ऐड करके देता हूँ कि ये सेम मॉडल है, दोनों एमएल और एलएसी निकाल लेना, ठीक है। अनबायसनेस चेक कर लेना, अनबायसनेस ऑफ अल्फा नॉट अल्फा वन, दोनों का अनबायसनेस क्यों चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों का अलग अलग वैल्यू आएगा इसमें। यस सर। तो दोनों का अनबायसनेस चेक कर लेना, किस कौन सा टेक्निक एस्टिमेशन टेक्निक हम लोगों को अनबायस्ड एस्टिमेशन निकाल के दे रहे हैं, क्योंकि कभी ये आ भी सकता है, सेम प्रॉब्लम दे दिया, अनबायसनेस के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये प्रॉब्लम में जैसे ऑप्शन को घुमा दिया, ऐसा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका अनबायसनेस चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत टाइम खा गया, चलो मेन टॉपिक में घुस जाते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इमिलिक चेक किया है, ठीक है। तो क्लियर हो गया सर। क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके फाइन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अभी देखो, ये जो एक रिग्रेशन लाइन आया है, ठीक है। सपोज वी हैव अ रिग्रेशन लाइन y इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.001
x. Suppose we have a regression line like this. Okay. So now the slope of the regression line, that is 0.0.001. That is quite low, almost zero, right? So now the question is whether this parameter is actually equal to 0. Because we have estimated the value of the parameter, but it is not exactly the value, right? So the question is whether the parameter value, that is 0.001, which is very small, is equal to 0 or not. Okay, if it is equals to 0, then we can say we have the regression line, or we can say like y equals to 0.5, right? When we are using it, suppose we have a regression line like this. Okay, and the line fits, sorry, not like this. Suppose this is a straight line, okay, parallel to x-axis. So what is the equation or regression line? Y equals to, suppose this is 0.5, so y equals to 0.5, bas khatam, idhar hi khatam. But maybe there is a slight slope which is plus 0.0001. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ कि suppose we have a regression line which is almost parallel to x-axis. ठीक है? So y equals to c. There is no slope in the regression line. If there is no slope, that means there is no relationship between the dependent and independent variable. So now we are going to test that. Okay. Suppose we have very low correlation. Okay. ये तुम लोगों ने किया ही होगा hypothesis में. Suppose we have a very low correlation. We are interested to test whether the correlation coefficient is 0 or not. So we are using this thing. The null hypothesis is that the rho, the correlation coefficient equal to 0, and alternative is that the rho is not equal to 0. So that was the thing we have used. Okay, we are familiar with. Now we are going to test the same thing on regression parameters, like the slope parameter. What is slope parameter? Beta 1. So now suppose we are testing our null hypothesis of h naught, beta 1 equals to, suppose beta 1 naught is the value of beta 1. Okay, so we have to find the test statistic. Okay, this is the general procedure of a hypothesis testing. First of all, we find the distribution, then we find the test statistic, then we find the critical value and compare the test statistic critical value to find the p-value, significance, everything. सब किया हुआ है ना, तो let's do that. Okay, so to test that we have to use the expected value of b1, that is beta 1. And what is the variance of b1? कल किया था हम लोगों ने, याद है, sigma square by sxx. ठीक किया था. So b1 follows normal distribution with beta 1 is the mean and sigma square by sxx is the variance. Okay, so we have the distribution of b1. So obviously the test statistic will follow z, that will follow normal distribution, and b1 minus beta 1 naught divided by sigma square by sxx, that is the test statistic which follows normal 0 1. Okay, right? And we are going to reject the null hypothesis if mod of z, that is greater than z alpha by 2, if it is for two-sided test and will be different for one-sided test. Okay, उसी में हम नहीं जा रहे. बीटा 1 को बीटा 1 0 क्यों लिखे? सॉरी, ओ इसका, हाँ ये वैल्यू है, तुम कुछ भी लिख सकते हो इसके जगह, तुम ऐसा रैंडमली कोई वैल्यू लिख दो. ठीक है, जैसा कि इन जनरल सपोज वी आर टेस्टिंग null hypothesis beta 1 equals to 0 and alternative is beta 1 is not equal to 0. Okay, so here beta 1 not, that is equals to 0. Okay, you can write beta k. तो बीटा 1 0 की जगह डायरेक्टली 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. No. Suppose we are testing beta 1 not equals to 2, then what will happen, right?
समझा ना? तो अगर अगर किसी को टेस्ट करना है कि स्लोप पैरामीटर इक्वल्स टू 2 है कि नहीं, तो वो क्या करेगा? अगर हम जीरो कर देंगे ना, तो ये z का वैल्यू क्या हो जाएगा? z का वैल्यू इफ बीटा 1 नॉट इक्वल्स टू 0, देन z इक्वल इक्वल्स टू b1 बाय रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर बाय sxx, that is equals to b1 sxx by sigma, right? So in that case we can't test, that is the generalized case. Okay, that I am talking about a generalized case. You can replace it by 0, obvious thing. Okay, but usually ये कर लेना चाहिए, ठीक है? तो the thing is, we are going to reject the hypothesis if z, ये तो बेसिक है, हाँ, बट एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में 2 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं. मतलब ये जो टॉपिक है, suppose we are testing about regression slope parameter, we should handle 2 types of problem. One, the hypothesis testing problem, and second is confidence interval problem. That is, तुम एग्जाम ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, can have a question like this. Suppose there is a regression model where b1 equals to 0.5 and square equals to 39, sxx equals to 45, and suppose तुमको दे दिया कि you are going to test the null hypothesis, b1 equals to 0, alternative is, हाँ, फिर से रिपीट करो, ठीक? आ रहा है साउंड? ब्रेक हो रही है. ओके, रुक. हाँ, हेलो, Yes sir. सुना दे रहा है? Yes sir. तो देखो, you have a question like this. You have b1 equals to 0.5, sigma square equals 39, sxx 45, and you have a hypothesis framework, that is null hypothesis b1 equal to 0 and alternative b1 not equal to 0. Then you might ask, what is the test statistic? तो ये usually 2 marks में, कभी 1 marks में भी आता है. वो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होता है, इसमें वैल्यू इनपुट करना होता है, उसी में तुमको ये पूछ सकते हैं ऐसा प्रॉब्लम. तो तुमको क्या करना है? एक चार्ट बना लेना है, एक चार्ट जिसमें क्या रहेगा, जितना हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम डिस्कस कर लेंगे उसी का केस इसका वैल्यू रहेगा. याद करके चले जाना, काम हो जाएगा. मतलब अगर वो सेम पार्ट में आता है तो, ठीक है? देखो, एक सिंपल बात है, ये हाइपोथेसिस का पार्ट है, ये अभी तक गेट का जो पेपर सेटर्स है उतना एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन कमिंग फ्यूचर दे विल डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट पार्ट. ओके, नेट में CSIR नेट जो होता है, ISS जो होता है, उसी में आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? गेट में भी ये सब पार्ट एक्सप्लोर होगा, ये तो गारंटेड है, क्योंकि अभी इन द कमिंग डेटा साइंस में इसमें काम चल रहा है, ठीक है? तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला पार्ट लाइटली मत लेना, ठीक है? कर लेना, ये करने में दिक्कत नहीं होगा, एक ही टेस्ट का फॉर्मूला होगा मैक्स टू मैक्स. ओके, फाइन. So now we have the test statistic z equals to b1 minus beta 1 not by root over sigma square by sxx. So now can we find the confidence interval? निकाल सकते हो confidence interval इधर? Yes Hello? sir. हाँ, बताओ कैसे निकालते हैं? What is the rule to find the Sir, confidence interval? z 1 minus alpha by 2 less than z No, less than minus z z alpha by 2 minus z alpha by 2. 1 minus alpha by 2 नहीं, इधर तो Yes तुमने sir. 2 साइडेड टेस्ट किया है ना? I Yes, sir. square के केस में पाएगा. हाँ, वो काई स्क्वायर के केस में होगा, एफ टेस्ट के केस में होगा, ठीक है? ये याद Yes sir. रखना. हाँ, ओके, फाइन. तो z alpha by 2 minus z alpha by 2 less than equals to z less than equals to z alpha by 2
दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मैं दिखा देता हूँ ऐसे करके। तो हियर वी हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, here mean equals to 0, that is z distribution. Okay, here we have alpha by 2, here we have alpha by 2, that is left sided, it is right sided, so we have both sided test. So total is alpha, and this is minus z alpha by 2, this is z alpha by 2. So for example, suppose alpha equals to 0.05, that is equals to 1.96, that is equals to minus 1.96, right? ये हमारा z एक्सिस है, z एक्सिस के ऊपर। समझ में आया ये डायग्राम? यस सर। किसी को डाउट नहीं है ना? पक्का आगे जा रहे हैं हम। अगर कोई भी जगह पे डाउट हो तो माइक ऑन करके सिंपल पूछना, ठीक है? चुप मत बैठना। तो वी हैव the probability of minus z alpha by 2 less than equals to b1 minus beta 1 by sigma square by sxx less than equals to z alpha by 2, that is equals to 1 minus alpha. So from here we can easily obtain the limit, the lower limit and the upper limit of what? Beta 1, right? क्या ठीक कहा तो मैंने? बताओ क्या हो गया? हेलो? यस सर। यस सर। तो देखो सिंपल बात है, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, जैसे कि तुमको बोल दिया कि सपोज x फॉलोज अ डिस्ट्रीब्यूशन f, ओके, fx, x फॉलोज fx। देख लो अच्छे से समझ लो, कोई डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकलना है। तुमको देखना है ये जो x है whether it is coming to normal distribution और chi square कहां पर जा रहा है, x को थोड़ा इधर उधर करके, ठीक है? can you transform the distribution x to normal distribution or chi square? If you can transform it, then transform it to, suppose you can transform it to normal distribution, तो इसको normal distribution का फ्रेमवर्क में लेके आओ। उसके बाद मैंने जो ये फॉर्मूला लिखा है इसमें डाल दो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड पिवोट। क्या पिवोट बोलता है तो इसको? क्या गलत बोला मैंने क्या? हेलो बताओ। क्या सर? नो सर। क्या ये गलत बोला मैंने ये? पाइवट क्वांटिटी? हाँ क्या सर? मतलब किसको पिवोट किसको बोलते हैं? पिवोट एलिमेंट मतलब पिवोट क्वांटिटी किस और पिवोट स्टैटिस्टिक किसको बोलते हैं? मतलब वो पैरामीटर पे डिपेंड ना करे डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो जब वो टर्म पे तुम लेके चले जाओगे उसके बाद तुम ये z के जगह उसका वैल्यू, वो सर पीओट स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है क्योंकि तो क्या पैरामीटर बोलते हैं इन्वॉल्व इसको? होता है ना। वो पाइवट क्वांटिटी होता है क्योंकि उसमें पैरामीटर इन्वॉल्व होता है, तो उसको स्टैटिस्टिक्स कैसे बोल पाएंगे? नो, मेरा सवाल है इसको, मतलब सपोज यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके? सो डिस्ट्रीब्यूशन को तुम नॉर्मल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद जब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, वो जो स्टैटिस्टिक उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? उसका कोई नाम है ना, पिवोट नहीं है आई थिंक। क्या नाम है उसका? समझा नहीं क्या पूछ रहे हैं सर। सपोज वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन x, ओके। राइट? अभी इसका सपोज यू हैव टू फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैसे निकाल? तो हम लोग एक पाइवट क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। हाँ, क्वांटिटी है ना, वो क्या है? पिवोट जो क्वांटिटी कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब पैरामीटर में इन्वॉल्व ना हो, मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन जो तो पैरामीटर से फ्री हो। उसको कैसे निकालोगे तुम? कैसे निकाले? हाँ मतलब उसको तो निकालो। हाँ सर, वो तो मतलब हाँ, तो रूल क्या है? ऐसा कोई मेथड नहीं है, बस मेथड नहीं है, लेकिन यूजुअली हम लोगों को क्या देखना होता है कि सपोज यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज लुक लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन,
मतलब काई स्क्वायर के कुछ आसपास है, तो तुम उसको काई स्क्वायर में ही लेके जाने का ट्राई करोगे ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, यस सर राइट। तो मैं Yes, वही sir. बोलना चाहता हूँ कि तुम देखो, तुमको सिंपल बात है, इसको कोई सपोज एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, सपोज 2 - x, f(x) इक्वल्स टू 2 - x, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को तुम यूज करके कैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालोगे? तो 2 माइनस एक्स, हाँ, एक्स कहाँ से कहाँ तक है सर? x कहाँ पर लाई कर रहा है ना, एक यस मैंने सपोज क्या होगा, 0 to 2 होगा ना, ये क्या 0 to 2 होगा चाहिए नहीं सर, एक्स तो डेफिनेटली मतलब f(x) जिस पैरामीटर को निकालना है f(x) इक्वल्स टू, कॉन्फिडेंस उस पर डिपेंड करना चाहिए, तभी हो पाएगा। हाँ, तो तुमको एक्स लाइज बिटवीन जीरो पिवोट, थीटा ऐसा कुछ। हाँ पिवोट क्वांटिटी निकाल लेना है ना। तो पिवोट यूज करके ये क्या है, ये जो है ये स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक है ना। आवाज ब्रेक हो रहा है सर, आपका स्क्रीन जो है विजुअल नहीं है। यस आ रहा है साउंड? यस सर, अब ठीक है। हाँ, कि वो जो पिवोट क्वांटिटी है उसको यूज करके तुम क्या करोगे, ये जो स्टैटिस्टिक है, ये जो z के जगह जो स्टैटिस्टिक बैठेगा यही पर तो बैठेगा ना। यस सर, यहाँ पे जेड ही बनेगा। हाँ, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या होगा? पाइवट क्वांटिटी। हाँ, पिवोट क्वांटिटी लोगे ना। तो यस सर। पिवोट इस पिवोट क्वांटिटी इज द स्टैटिस्टिक और नॉट? नो, नो, व्हाई? बिकॉज इट इज स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर इन्वॉल्व है। ओके, स्टैटिस्टिक्स इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर ना। फ्री फॉर्म पैरामीटर, ओके फाइन। तो ये जो है z, हाँ तुमने सही बात बताया, लेकिन ये जो है ये क्या पैरामीटर से इंडिपेंडेंट है कि नहीं? इंडिपेंडेंट है नहीं, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो मैं स्टैटिस्टिक्स जो मैं क्वांटिटी बनाया हूँ जेड, उस वो तो पैरामीटर इन्वॉल्व है उसमें। स्टैटिस्टिक्स तो केवल एक्स में होता है ना, केवल ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व वैल्यूज होती है। हाँ वही तो कौन सा वैल्यू इन्वॉल्व होना चाहिए। देखो, पैरामीटर तुम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हो ना, पुट कर सकते हो बताओ? क्या सर? पैरामीटर का वैल्यू तुम डायरेक्टली पुट कर सकते हो? नहीं, पैरामीटर तो एस्टिमेट करना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो तो पैरामीटर फ्री होना ही चाहिए ना। तुम यही बोल रहे हो ना, वो पैरामीटर फ्री है कि नहीं, यही तो पूछ रहे हो ना। हाँ सर, वो पैरामीटर से फ्री होगा तभी स्टैटिस्टिक्स बोल पाएंगे, तभी अदरवाइज नहीं। हो पाएगा, राइट। इसलिए इसको पाइवट क्वांटिटी बोलते हैं, नॉट पाइवट स्टैटिस्टिक्स आई थिंक। नहीं, ऐसे पाइवट क्वांटिटी यूज करके ये जो स्टैटिस्टिक है, ये तो स्टैटिस्टिक है। मतलब हम लोग पाइवट क्वांटिटी का यूज करके कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। कॉन्फिडेंस निकलना है ना। जी, और हाँ, जो पाइवट क्वांटिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, नहीं फ्री होना फ्रॉम चाहिए। पैरामीटर। हाँ, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। तो तुम लोग ये निकल सकते हो ना, एक अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, मतलब जैसा कि मैंने इधर निकल रहा हूँ कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इधर से कैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल सकते, ये कर सकते हो ना पूरा। यस सर, यस सर। देखो, अगर मतलब ऐसा है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये वन साइडेड बन गया, सपोज इज अ वन यस साइडेड सर। टेस्ट। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं, मतलब अगर कोई क्वेश्चन में हो गया ऐसा कि नल हाइपोथेसिस, जैसा कि मैंने इधर लिया था, नल हाइपोथेसिस β1 इक्वल्स टू β1 नॉट एंड अल्टरनेटिव β1 इज नॉट इक्वल टू β1 नॉट, ठीक है। तो अब जो कॉन्फिडेंस इंटरवल बन रहा है तो ऐसा बन रहा है, ठीक है। यस सर, बोथ सब लोग साइडेड। अच्छे से सुन लेना, ठीक है।
प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, अगर ये ग्रेटर देन हो गया तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल भी चेंज आएगा, और ये अगर लेस देन हो गया तो इसका मतलब भी कॉन्फिडेंस इंटरवल चेंज आएगा. yes, तो यू कांट यूज दिस फॉर्मूला इन दैट केस, yes, right? yes, Then we yes, can only use either upper limit or lower limit, right? yes, Okay, fine. तो ऐसा बात लिफ्ट करो. एक काम करते हैं, डायरेक्टली कॉन्फिडेंस इंटरवल में चलते हैं. तो बताओ ये वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई एस एक्स एक्स कितना आएगा, yes, sir. लेस देन इक्वल्स टू बीटा 1 लेस देन इक्वल्स टू b1 माइनस सॉरी प्लस plus z alpha by 2 sigma square by s x x, that is equals to 1 minus alpha. Now the thing yes, is, sir. if you have, this is a case where you are testing a hypothesis, alternative hypothesis with the sign of not equal to. If it is greater than, suppose you have null hypothesis beta 1 equals to what, beta 1 not, and that is beta 1 not, and suppose you have alternative beta 1 is greater than beta 1 not. Yes, sir. In that case you are testing a hypothesis one sided, वो छोड़ दो, ठीक है. अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर होगा तो क्या बनेगा, the 0 to probability beta of 1 plus beta 1 लेस देन या फिर ग्रेटर देन, कौन सा होगा, less than लेस देन b1 plus, plus right, z yes, alpha by 2 sigma square by s x6, that is equals to 1 minus alpha. yes. वहाँ अल्फा होगा सर, अल्फा बाय 2 की जगह. हाँ 1 minus alpha by 2 ना, इधर ही अल्फा ही रहेगा ना. यहाँ पे अल्फा रहेगा, अल्फा बाय 2 जहाँ पे आपने लिखा है. हाँ उधर जेड अल्फा अल्फा बाई बाय 2 2. जगह अल्फा हो जाएगा. तो बात Yes. ऐसा है कि तुम ऐसा कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, ऐसा भी प्रॉब्लम देके माइंड गेट कंफ्यूज कि कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, लेकिन जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पार्ट है उसी में ग्रेटर देन या फिर लेस देन दे दिया है. तो यू डोंट गेट पैनिक्ड, यू शुड यूज द मेथोडोलॉजी. सिंपल मेथोडोलॉजी क्या है कि जब ये साइन ग्रेटर देन रहेगा तो अपर लिमिट रहेगा, ठीक है, और जब भी ये लेस देन रहेगा तो लोअर लिमिट रह जाएगा. लोअर लिमिट हम लोग यूज करेंगे, ये चीज बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है. तो द थिंग इज, when you are testing a slope parameter, in case of slope parameter just remember these things. Okay, one is test statistic. What is the test statistic, b1 minus beta 1 not divided by sigma square by sxx. And what is the confidence interval, b1 minus z alpha by 2 root over sigma square by sxx comma b1 plus z alpha by 2 root over sigma square by sxx. That thing only happens when sigma square is known. ये Yes. पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि when we have the known sigma square then we can use it, because here we can also have unknown sigma square, right? So Yes. when we have unknown sigma square then we can't use this formula because here this is not true. This portion, variance of b1 is sigma square by sxx, we can't use. When we can't use sigma square, then what will happen, then we are going to use SS residual. That means Estimated value of sigma expectation square. of, yes, expectation of SS residual कितना हुआ था, n minus 2 into sigma square. Yes, sir. ये याद है ना, ये किया था ना लास्ट दिन. Yes, yes. बाकी लोगों को याद है,
आप लोग बताओ, सबको याद है कि नहीं ये वाला टर्म? Yes, sir. Okay, fine. Then we are going to use this part. So in that case एकदम directly एक chart मैं prepare करके देता हूँ. You can use this chart. In that case you are going to use, पहले हम लोग z यूज किया था, अभी हम लोग क्या करेंगे, t यूज करेंगे. So t equals to b1 minus beta 1 naught divided by root over ss residual divided by n minus 2 into sxx, because since expectation of ss residual by n minus 2 sigma square, so we are going to use sigma square hat, the estimated value of sigma square. Okay, is that clear to everyone? Yes, sir. Huh? Okay, fine. So in that case, the confidence interval will be b1 minus, in that case what will be the confidence interval? T, right? T alpha by 2. And what will be the degrees of freedom? N minus 2. Correct, n minus 2, because the degrees of freedom of the residual, SS residual, that is n minus 2. Okay. Look, one more thing you can say from here, that is SS residual by n minus 2, that follows chi-square with n minus 2. ठीक है ना ये? हाँ? And in the above we have b1 minus beta naught. SS That follows, residual divided by sigma square. sorry, n minus 2 into sxx. sxx, that follows chi-square. And कि sigma square सर? n minus 2 नहीं होगा ना, n minus 2? नहीं, sigma square होगा ना? सिग्मा स्क्वायर होगा. हाँ, Yes, सिग्मा sir. स्क्वायर होगा, राइट, सिग्मा स्क्वायर. So in that case हाँ, सिग्मा स्क्वायर का chi स्क्वायर n minus 2, बट हम ये बोल रहे हैं कि हम इसको यूज कर रहे हैं sxx, ये भी chi स्क्वायर फॉलो करेगा, क्योंकि एक टी डिस्ट्रीब्यूशन में न्यूमरेटर में होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिनोमिनेटर में होता है रूट ओवर chi स्क्वायर बाई n. ये तो टी है. Yes. सो इसीलिए हम इधर भी जो लिखना चाह रहे थे हम लोग कि ये जो टर्म है एस रेसिडुअल डिवाइडेड बाय sxx, ये भी chi स्क्वायर फॉलो करेगा, ये टर्म भी करना इसका चाहिए डिग्री ना. ऑफ फ्रीडम क्या होगा? n minus 2 ही होगा, क्योंकि जो टर्म हम लोगों ने सोचा था कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, वो रेसिडुअल पे था, EI पे, क्योंकि दोनों EI एंड EJ दोनों पैरामीटर को, EI EJ क्यों लिख रहे हैं हम, EI जो था ये दोनों बीटा नॉट बीटा 1 दोनों को एक्सप्लेन करने में दोनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लगा दिया था, है ना. क्या गलत बोला कुछ बताओ? नहीं, ठीक है ना. देखो ये सब जो चीज है ना, ये सब थोड़ा सोचना चाहिए. यू शुड थिंक अबाउट इट, बिकॉज वी ऑल नो दिस कि SS रेसिडुअल बाय SY फॉलोज chi स्क्वायर. बट अभी मैंने जो किया, तुम इधर से भी यू कैन राइट दैट SS रेसिडुअल बाय SXX दैट आल्सो फॉलोज chi स्क्वायर. फॉलो करना चाहिए, नहीं तो ये जो t हम लिख रहे हैं ये वैलिड नहीं होगा ना. ये जो लिखा है मैंने टी स्टैटिस्टिक, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करेगा. सो ये थोड़ा सोचना स्टार्ट कर दो, ठीक है. अगर ट्राई करना, ये खत्म होने के क्लास खत्म होने के बाद ट्राई करना, अगर नहीं हो रहा है मुझे बताना, हम चेक करेंगे क्यों वो टी डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी टीम नहीं chi स्क्वायर क्यों फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है, करना चाहिए. फाइन, ओके फाइन. So that will be b1 alpha by 2 comma n minus 2 is the degrees of freedom, and the term will be SS residual divided by n minus 2
s x x, and what will be the upper limit? Beta b1 plus t alpha by 2 n minus 2 root over ss residual divided by n minus 2 s x x. ठीक लिखा मैंने? बताओ. Yes, sir. ठीक है, तो we'll be using this formula when sigma square is unknown. ये जो फॉर्मूला है ना, ये डायरेक्टली पूछा था आई थिंक कोई भी गेट एग्जाम में ये फॉर्मूला था, डायरेक्टली पूछा था. इसी में कोई दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला था, डायरेक्टली आया था. बस चेक करना, ठीक है. But the thing is now we have रेसिडुअल का वेरिएंस तो हमेशा अननोन ही होता है. रेसिडुअल का वेरिएंस हमेशा क्या था? अननोन होता है. यस सर. मतलब रेसिडुअल के केस में यहाँ पे नहीं, मतलब रेसिडुअल का वेरिएंस जो है वो हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सिग्मा स्क्वायर इज अननोन. व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर? हाँ, यहाँ पर जो सिग्मा स्क्वायर लिखे हैं ना, ये सिग्मा स्क्वायर क्या है? अरे बताओ, सिग्मा स्क्वायर क्या है? सर वेरिएंस. किसका वेरिएंस? वेरिएंस ऑफ y. yi y. हाँ, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? सिग्मा स्क्वायर किसका? वेरिएंस ऑफ y है ना. y मतलब क्या है? जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट, वो है हमारा y. समझे? देखो क्या हो गया? डाउट है कोई? बताओ. नहीं. ठीक है, ओके फाइन. देन हियर वी हैव डिराइव तो नहीं किया, मतलब ऐसे ही बता दिया तुम लोगों को. तो डिराइव भी कर सकते हैं, बट द थिंग इज एक चार्ट बना लो. मैंने जैसे बनाया है ऐसे करके. एक साइड में रहेगा टेस्ट स्टैटिस्टिक, एक साइड में रहेगा कॉन्फिडेंस इंटरवल. ठीक है, क्योंकि ये तुम लोगों को यूजफुल होगा. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि गेट में कोई तुमको डिराइव करने के लिए नहीं बोलेगा ना. तो ऑब्वियसली next thing is we can do the same thing about the intercept parameter, that is beta naught. उस केस में भी हम लोग सेम ये कर सकते हैं. जब दोनों केस होगा, if sigma square is known and another case is sigma square is unknown. ओके, रात में कर लेते हैं एक बार. बताओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ बी नॉट क्या होता है? बी नॉट बीटा नॉट. मतलब बीटा नॉट. वेरिएंस ऑफ बी नॉट याद नहीं है? वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट सिग्मा स्क्वायर 1 by n प्लस x बार स्क्वायर बाई s x x. कराया था नहीं कराया था? कराया था ना, ये हो गया था. हाँ, फिर ये याद रखो. ये जब भी देखो, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है? नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा. तो मिल गया वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल गया. तो इसी को यूज करके वी कैन फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल. सो व्हाट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल? देखो, ये जो टर्म है ये तो वेरिएंस में आ ही जाएगा. प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूशन इनटू z इनटू रूट ओवर दिस. This term will be used as the root over of this. So first of all, let's find the test statistic. Test statistic is b naught minus, suppose we are testing the null hypothesis, beta naught equals to beta naught naught, and alternative is beta naught equals to not equals to beta naught naught. So z equals to b naught minus beta naught naught divided by root over sigma square in bracket 1 by n plus x bar square by sxx. That will also follow normal 0 1, correct? तो इसको लिख लेते हैं. z equals to क्या होगा? b naught minus over जो था सिग्मा स्क्वायर 1 by n plus x bar square root xx.
ठीक है ना? it is used when sigma square is known. Now tell me what will happen if sigma square is unknown. Then obviously it will be a t distribution. ये तो अभी तक कर लिया हम लोगों ने, टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब तुम लोग बताओ इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा? न्यूमरेटर में क्या होगा बताओ, बोलो बोलो, चुप क्यों हो गए बताओ? सर वो सिग्मा स्क्वायर की जगह पे वही ऐसे ही एस एस रेसिडुअल बाई n-2 बिठा जाएगा। एमएस रेसिडुअल हो जाएगा। हाँ करेक्ट। तो इधर जो किया था हम लोगों ने कि सिग्मा स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया था एस एस रेसिडुअल बाई n-2 से, यही भी सेम चीज करेंगे, सिग्मा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे रेसिडुअल से। करेक्ट। तो एस एस रेसिडुअल बाई n-2 1/n प्लस bar square by sxx and the numerator that will be b naught minus beta naught naught। देखो ये फॉर्मूला याद रखना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है? सिग्मा स्क्वायर का टाइम पे जब नोन हुआ है, when sigma square is known, remember the formula, you replace it by residual thing with residual thing when sigma square is unknown। ओके, एक याद रखोगे दूसरा भी हो जाएगा, ठीक है ना? सो व्हाट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो भी साइड में लिख लेते हैं। तुम लोग ऐसा ही एक पेपर में ये जो मैंने किया है ना इधर, इसको ऐड कर लो, ठीक है? तो क्या होगा, याद रहेगा ये चीज। सो व्हाट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल, बी नॉट माइनस, सेम जैसा इधर था सेम ही होगा, ठीक है? कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई अलग नहीं है। z/2 z अल्फा/2 सिग्मा स्क्वायर रूट ओवर 1/n plus x bar square by sxx and upper limit is b naught plus z alpha/2 sigma square root over 1/n plus x bar square by sx। सिग्मा स्क्वायर अंदर होगा ना? अच्छा सिग्मा स्क्वायर अंदर होगा ना, तो बाहर आएगा तो सिग्मा हो जाएगा। तो सिग्मा कर देते हैं इसको, सिग्मा, ठीक है अभी? ओके फाइन। एंड ये बताओ, ये भी सेम, बी नॉट माइनस टी अल्फा/2 कॉमा n-2 और रूट ओवर एस एस रेसिडुअल बाई n-2 1/n प्लस एक्स बार स्क्वायर बाई एस एक्स एक्स, ये हो गया लोअर लिमिट। एंड बी नॉट प्लस टी अल्फा/2 n-2 रूट ओवर एस एस रेसिडुअल बाई n-2 1/n, ये माइनस है, हाँ, 1/n प्लस एक्स बार स्क्वायर बाई एस एक्स एक्स, ये अपर लिमिट हो गया। देखो ये चीज करने के लिए मैं कोई बुक लेके बैठा नहीं हूँ, सिंपल बात है कि तुम जस्ट एक चीज याद रखो कि उसका मीन क्या है, उसका वेरिएंस क्या है, बस खत्म। तुम्हारा दिमाग में अगर ये रहेगा ना, ये मीन और वेरिएंस टर्म, तुम इजीली कर पाओगे। इसके लिए कुछ तुमको एग्जाम में भी अगर कोई कभी भूल जाओगे ना कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला, तो याद कर लेना मीन क्या था, वेरिएंस क्या था, उसी से तुम्हारा वो याद आ जाएगा, ठीक है ना? किसी को कोई डाउट है इधर अभी तक जितना भी हुआ है? क्या सो गया हो क्या? हाँ नो सर। तो बताओ बताओ। अभी तक समझ में आ गया पूरा? आगे बढ़े? Yes, sir. ओके यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक और है, क्या है? एक और थिंग हम लोगों को देखना है, क्या है बताओ बताओ। बीटा वन सिग्मा हो गया, स्क्वायर। करेक्ट, बीटा 1 हो गया, सिग्मा स्क्वायर बाकी है। हाँ चलो सिग्मा स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सिग्मा स्क्वायर में तो नोन अननोन का कोई बात नहीं है ना, तो
उसमें क्या यूज होगा? रेसिडुअल यूज होगा। एस एस रेसिडुअल बाय सिग्मा स्क्वायर क्या फॉलो करेगा ये? chi square डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। n minus 2. -2 करेक्ट। तो सपोज इट इज आवर टेस्ट स्टैटिस्टिक टी। टी तो नहीं बोल सकते हम, काई स्क्वायर है ना, तो सी लिख लेते हैं। सी इक्वल्स टू दिस। ओके, सो नाउ द थिंग इज, टेल मी व्हाट विल बी द क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा? एस एस रेसिडुअल बाय काई स्क्वायर n minus 2 1 minus alpha by 2 and SS रेसिडुअल काई स्क्वायर n minus 2। कोई बोल रहा था ना कफ 1 minus alpha by 2 होगा, कफ alpha by 2 होगा। इसी केस में काई स्क्वायर में होता है ना, क्या है ना ये? ठीक। Yes sir. ये कैसे आ रहा है पता है? ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है देखो, ये थोड़ा टिपिकल है, तो देख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ काई स्क्वायर n minus 2 अल्फा बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू c लेस देन इक्वल्स टू काई स्क्वायर n minus 2 1 minus अल्फा बाई 2। और तो जो पिवोट क्वांटिटी वगैरह जो भी निकल के इधर बैठा दोगे ना, ac के जगह बैठ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 1 minus अल्फा, राइट। तो अभी इधर c के जगह रिप्लेस कर दोगे क्या? एस एस रेसिडुअल बाय सिग्मा स्क्वायर। तो इधर से सिग्मा स्क्वायर का लिमिट निकाल लो, राइट। यही से निकालते हैं ना। लोअर लिमिट इसमें 1 माइनस अल्फा बाय 2 होगा, ये अल्फा बाय 2। हाँ ये क्यों सर नहीं आ रहा है गलत है। देखो, इधर रिप्लेस किया ना इसको, काई स्क्वायर n minus 2 1 minus अल्फा बाई 2, और इस साइड क्या होगा? काई स्क्वायर n minus 2 अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 minus अल्फा। तो अभी क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल्स ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे दोनों साइड। हाँ रेसिप्रोकल्स ले लेंगे तो क्या होगा, लिमिट साइड बाय साइड हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा लिमिट। हाँ राइट। तो ये हो गया हम लोगों का अभी। तो सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। बताओ। सर कोई तो ये भी कर सकता है ना कि 1 माइनस अल्फा बाई 2 वो लेफ्ट साइड में लिख के अल्फा बाई 2 राइट साइड में भी लिख सकता है। इसका वैल्यू लो होता है, काई स्क्वायर में इसका वैल्यू तो कम होता है ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। टेबल में जब जाओगे ना, टेबल में एक तरफ रहेगा एन, एक तरफ रहेगा अल्फा, देखोगे ना इसका वैल्यू तो लो होगा। अच्छा, ये मेरे को क्यों? पता नहीं था। क्योंकि अल्फा इक्वल्स टू 0.005 है ना, सपोज अल्फा इक्वल्स टू 0.05 है, 0.05, तो अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0.025 हो गया। तो ये जो काई स्क्वायर का वैल्यू है, इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी होना चाहिए 0.025, और इस साइड का जो है इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी होना चाहिए 0.075। तो ऑब्वियसली इसका जो काई स्क्वायर का वैल्यू होगा वो तो बड़ा होगा। अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक है, तो ये टेबल पे तुम जब जाओगे ना, टेबल में दिख जाएगा ये वैल्यू। ओके सर, थैंक यू। तुम लोग ये टेबल यूज कर सकते हो ना, काई स्क्वायर टी, क्या बताओ? यस सर। नहीं, किसने क्वेश्चन जिसने पूछा कर सकते हाँ हो? सर, मैंने हाँ कर देख के देखो सर बता सकता हूँ। हाँ, मतलब गेट एग्जाम में तुमको टेबल नहीं देगा, लेकिन टेबल का वैल्यू दे देगा, ठीक है, 2-3 वैल्यू दे देगा, प्रोवाइड दे विल प्रोवाइड 2-3 values, okay, 2-3 values from table, then you will have to choose which one is you have to use and which one you have to neglect, okay। तो थोड़ा याद रखना, ये थोड़ा टेबल थोड़ा सीख देख लेना एक बार, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके फाइन। ओके, तो देखो अभी हम लोग ने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लिया कि सिंगल करके, मतलब बीटा नॉट बीटा 1 सिग्मा स्क्वायर। एक और होता है जो इंपॉर्टेंट है बहुत, वो है जॉइंट कॉन्फिडेंस रीजियन। मतलब क्या है कि बीटा नॉट एंड बीटा 1 का जॉइंट कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा। आई थिंक आप और टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 11:30 हो गया है, तो इसको करेंगे, इसको खत्म करके मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है।
अभी इसका टाइम हो गया सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, तो हम एक काम करेंगे, तुम लोग को एक शीट दे देंगे, सॉल्व कर मुझे भेजना, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। थोड़ा मतलब एमसीक्यू ट्राई कर रहे हम, एमसीक्यू दे, ठीक है? अगर नहीं हो पाए, देखो गेट में जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं ना, तुम अगर रिग्रेशन के टाइम पे देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर है जो फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है? अगर इफ यू हैव यू नो द करेक्ट फॉर्मूला एग्जाम के, if you can remember that, okay, you can easily solve the problem, okay? So it is very necessary to remember all these formulas, right? तो तुम लोग एक काम करो, अभी कर लो कि अभी जितना टाइम मैंने 2 दिन में जितना कुछ कराया है ना, उसका एक फॉर्मूला शीट बना लो। कोई भी डिराइव मत करना, डेरिवेशन तुम लोगों को नहीं चाहिए क्या? फॉर्मूला, ओके? एक फॉर्मूला शीट बना लो। अगर नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है तो बताना, ठीक है? क्या क्या ऐड करना है हम बोल देंगे। देखो हम प्रोवाइड कर सकते हैं एक फॉर्मूला शीट, लेकिन तुम्हारा खुद का प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए कुछ, ये तुम बहुत बढ़िया कर सकते हो तुम लोग, ठीक है? बहुत बड़ा काम नहीं है ये। जो है कि अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ, जैसे कि मॉडल में, क्योंकि हम लोग क्या देखा कि जब एमएलई कर रहे थे ना, एमएलई में तो 2-3 ऐसे प्रॉब्लम देखा जहाँ पर मॉडिफिकेशन हो रहा है। ये सब चीज में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ठीक है ना? तो जॉइंट रीजन से नेक्स्ट दिन स्टार्ट करते। अगर किसी का कोई डाउट है सर टाइम हो गया। हाँ पूछ लो, थोड़ा किसी का कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, ठीक है, तो स्टॉप करते इधर ही।